in this video we are going to study how to use future time. So future tense in English can be expressed in the following ways. Number 1, simple present tense. Number 2, present continuous tense. Number 3, to be or be to. Number 4, to be about to. And number 5, be going to. So let's see how to use these. So number 1 point, the simple present tense can be used to express a series of planned action in the future, especially a journey. तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर जब हम फ्यूचर टाइम में यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, कोई चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर में वो एक्शन या फिर वो इवेंट होने वाला है एंड दैट एक्शन इज़ ऑलरेडी प्लान्ड. फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM. He goes to Delhi tomorrow. So these things are planned, already planned, and which are going to happen in future. तो बट हमारा जो ये टेंस यूज़ कर रहे हैं वो हम प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं. बट ये सेंटेंस हमें कैसे बता रहे हैं कि हम फ्यूचर टाइम दिख रहा है, सच एज इन एग्जाम्पल 1, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM. So the whole sentence is in simple present tense, but 10 AM tells us that it is going to be happened in future. Point number 2, the present progressive tense is used when the planned action for the future is definite. So present progressive और continuous tense जो होता है वो कब यूज़ होता है, जब कोई एक्शन प्लान्ड होता है जो फ्यूचर में होने वाला है और डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, होएगा ही होएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर लीविंग फॉर जापान नेक्स्ट वीक. तो जापान वो लोग लीव कर रहे हैं नेक्स्ट वीक, तो इसमें कोई गुंजाइश तो है नहीं कि वो लोग नेक्स्ट वीक नहीं करेंगे. दिस इज़ गोइंग टू हैपन डेफिनेटली. ओके, another example, we are visiting the Taj on Monday. So this is a future action which is going to happen definitely. Okay, point number 3, how to use to be or be to. To be or be to is used to express a necessary or duty or something planned for the future. तो something which is a necessity, कोई चीज़ जो necessity है. फॉर एग्जाम्पल, we are to be in the school at 8 AM. So if the timing of school is 8 AM, so the students have to be there at 8 AM, right? हम 9 AM तो नहीं जा सकते, एंट्री नहीं मिलेगी. 7 AM भी नहीं जा सकते, एंट्री नहीं मिलेगी. तो these are the events which are necessity और a duty. जो चीज़ मजबूरी हो जाती है, जो हमारी ड्यूटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो चीज़ हमें करनी है, तो there we use to be or be to. Another example, I am to attend the meeting at 10 AM. Okay, point number 4, be about to. Be about to may be used to express events or actions which are likely to happen in a very short time. So जब भी कोई भी इवेंट या फिर एक्शन बहुत छोटे टाइम के लिए अकर करता है, उन सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं बी अबाउट टू. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव, द हेडमास्टर इज़ अबाउट टू कम, द बेल इज़ अबाउट टू रिंग. तो ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है. उन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए इन सच सेंटेंसेस वी यूज़ बी अबाउट टू. पॉइंट नंबर 5, बी गोइंग टू. Be going to is used to refer the express events and actions that happen in the future as a result of present intentions or situations. कोई ऐसी चीज़ जो प्रेजेंट में हुई है और प्रेजेंट पे डिपेंडेंट रहकर कोई another event फ्यूचर में हो गया, तो उसमें हम to express such kinds of sentences we use be going to. For example, she is not going to give us money. तो ऐसा कुछ हुआ होगा, कोई एनिमिटी रही होगी प्रेजेंट में जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि फ्यूचर में वो उसे मनी नहीं देगी. ओके, प्राइसेस आर गोइंग टू राइज. डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू रेन?
तो मे बी प्रेजेंट में बहुत ही क्लाउडी वेदर है, तो फ्यूचर में इट इज़ गोइंग टू रेन. ओके, so there's a note. We generally use the modals shall or will to express future time. I've told you earlier also, जो modals हैं shall and will, जब हम present tense के साथ shall और will यूज़ करते हैं तो वो sentences क्या express करते हैं, future time express करते हैं. तो उनका form क्या होता है? The future time is expressed by using shall or with the base form of verb. जो base form होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गो बेस फॉर्म है. जब हमने उसका पास्ट टेंस क्या हो गया, वेंट. ओके, तो जो बेस फॉर्म है हमेशा हम शैल और विल के साथ क्या यूज़ करते हैं, बेस फॉर्म. जैसे कि गो, राइट, ओके, मीट, तो ये सब सारे बेस फॉर्म्स हो गए. फॉर एग्ज़ाम्पल आई शैल गो देयर टुमारो. तो शैल से हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस है, सॉरी फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेंटेंस. एंड गो इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन अनदर एग्जाम्पल, दे विल कम हेयर इन द इवनिंग. सो कम यहाँ पे क्या है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है. सिमिलरली द नेगेटिव सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर शैल और विल. तो अगर हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है इन फ्यूचर टाइम तो हम क्या करेंगे, शैल और विल के बाद हम नॉट लगा देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल नॉट गो देयर टुमारो. दे विल नॉट कम हेयर इन द इवनिंग. ठीक है. सिमिलरली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं, हमेशा वो स्टार्ट होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज से. मॉडल ऑक्सिलरीज फॉर एग्ज़ाम्पल शैल, विल, ये तो हो गई फ्यूचर टेंस की बात. अगर यही इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे को पास्ट में बनाना होता तो हम डिड लगा देते. अगर यही चीज़ हमें प्रेजेंट में बनानी होती तो हमारा आर लग जाता, इज़ लग जाता. ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल शैल आई गो देयर. तो शैल हमारा मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और गो हमारा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया. ठीक है. विल ही कम हेयर. ओके, सो फोर्थ पॉइंट सेज द नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैव द फॉर्म शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट. अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, हम ऑक्सिलरी फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ शैल और विल. ओके, उसके बाद वी यूज़ सब्जेक्ट, मे बी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट पर्सन के लिए हम आई यूज़ करते हैं, सेकेंड पर्सन के लिए हम यू यूज़ करते हैं एंड थर्ड पर्सन के लिए एनी नेम और ही, शी, दे एक्सेट्रा. ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल शैल आई नॉट गो देयर. तो शैल इज़ आर ऑक्सिलरी वर्ब, आई इज़ द सब्जेक्ट and not is the negative verb and go is the base form of the verb. Okay, now the uses of simple future. So what are the uses of simple future, कहाँ हम simple future use करते हैं. Number 1, shall is used with the second and third person to express determination, promise, intention etc. तो shall हम किसके साथ यूज़ करते हैं, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ. सेकेंड पर्सन मीन्स यू, थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी और एनी नेम. ओके, और इन पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई सेंटेंस को हमें एक्सप्रेस करवाना होता है कि वो कोई डिटर्मिनेशन है, उसमें कोई प्रॉमिस है या फिर कोई इंटेंशन है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शैल गेट अ रिवॉर्ड इफ़ यू विन द रेस. तो ये क्या है, दिस इज़ एन डिटर्मिनेशन. अनदर एग्जाम्पल, ही शैल बी फाइंड इफ़ ही शुड नॉट अटेंड द क्लासेस. ओके, पॉइंट नंबर सेकेंड, शैल इज़ यूज विथ फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेशन. तो शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन दैट इज़ आई, उसके साथ भी यूज़ होता है, पर कब होता है, जब हमें एक्सप्रेस करना होता है कोई ऑफ़र
या फिर कोई सजेशन. फॉर एग्जाम्पल, शैल आई ओपन द डोर, सो दिस इज एन ऑफर. अनदर एग्जाम्पल, विच ड्रेस शैल आई वेयर, तो ये किसी का सजेशन हो गया. ओके. नंबर थर्ड, will is used with the first person to express willingness, determination, etc. तो will कब यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, जब एक सेंटेंस को एक्सप्रेस कराना होता है कोई विलिंगनेस या डिटर्मिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट माई सेल्फ, दिस इज़ द डिटर्मिनेशन कि मैं अपने आप कर सकता हूँ. आई विल हेल्प यू, ओके, दिस इज़ द विलिंगनेस. वी विल नेवर कमिट सच अ मिस्टेक अगेन, अगेन विलिंगनेस. ओके. Point number 4. The simple future is used to express the speaker's opinion for something to be done in the future. We use such verbs like believe, know, suppose, think. We also use such adverbs as perhaps, possibly, surely, etc. So, simple future जो टेंस है वो यूज़ होता है टू एक्सप्रेस कोई स्पीकर का ओपिनियन फॉर समथिंग टू बी डन इन फ्यूचर, कोई ऐसा ओपिनियन स्पीकर का जो फ्यूचर में कर सकते हैं. और इन सारे सेंटेंसेस में कुछ पॉपुलर वर्ब्स हैं उनका यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, बिलीव, नो, सपोज, थिंक. ओके. वी ऑल्सो यूज़ एडवर्ब्स सच एज परहैप्स, possibly, surely, etc. For example, we think he will reach there in time. Another example, they suppose that he will never help them. Okay. Point number 5. The simple future is used to express habitual actions. So simple future tense is also used to express the habitual actions. Habitual actions मतलब जो डेली का हैबिट बन गई है. फॉर एग्जाम्पल, दे विल अब्यूज़ यू अगेन एंड अगेन, तो दिस इज़ एन हैबिट. किसी की अब्यूज़ करने की हैबिट बन गई है तो फिर ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है ये सेंटेंस? एनी हैबिचुअल एक्शन. एंड दिस सेंटेंस इज इन सिंपल फ्यूचर टेंस. एंड कैसे पता कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है? बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ वर्ड विल हेयर. फॉर अनदर एग्जाम्पल, ही विल गो टू चर्च डेली, तो दिस इज ऑल्सो एन हैबिट. पॉइंट नंबर 6. द सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज़ येट टू टेक प्लेस. तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि सिंपल फ्यूचर टेंस कब यूज़ होता है? जब कोई एक एक्शन होता है जो फ्यूचर में टेक प्लेस करने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हेल्प हिम, he will come here tomorrow, this is going to happen in future. Okay. Let's come to future progressive और future continuous tense. So इसका फॉर्म क्या है? जब भी continuous tense यूज़ करते हैं, either we are using as present continuous, past continuous और future continuous. हमेशा जब भी continuous आएगा तो ing फॉर्म ऐड हो जाएगा वर्ब के अंदर. लाइक अगर गो है तो प्लस ing गोइंग हो जाएगा. दैट शोज दैट इट इज़ इन कंटिन्यूस फॉर्म. ओके. सो कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? कोई एक्शन जो स्टिल प्रोग्रेशन में है, स्टिल प्रोग्रेस में है. ओके. सो फॉर्म इसका है द फ्यूचर प्रोग्रेसिव हैज़ द फॉर्म शैल और विल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल. ओके. सो शैल और विल तो यूज़ होगा बिकॉज ये फ्यूचर टेंस है, प्लस बी यूज़ हो जाएगा, प्लस क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ing, तो वर्ब प्लस ing यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी डूइंग दिस वर्क टुमारो, तो आई इज़ द सब्जेक्ट हेयर, शैल इज़ द ऑक्सिलरी वर्ब, डूइंग इज़ वर्ब प्लस ing फॉर्म. ओके. अनदर एग्जाम्पल, ही विल बी गोइंग टू Delhi tomorrow. Okay. So in future continuous tense, if we have to make negative sentences, so negative sentences are formed by placing not after shall or will. तो shall के बाद हम not लगा देते हैं तो वो negative sentences बन जाते हैं. For example, I shall not be doing this work tomorrow. So I is the subject, shall auxiliary, not is the negative word, and doing is verb plus ing form. Okay.
he will not be going to Delhi tomorrow. Similarly for interrogative sentences, as I have told you, interrogative sentence start होते हैं auxiliary verb से, so shall और will से start होंगे. तो shall I be doing this work tomorrow with a question mark. Shall is the auxiliary verb, I is the subject, and doing is verb plus ing form. Another example, will he not be going to Delhi tomorrow? Okay. So to express a sentence in negative interrogative sentence, the negative interrogative sentences are formed by putting shall or will before the subject and not after it. So कैसे बनेगा? तो क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो हमेशा ही किससे स्टार्ट होगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, शैल एंड विल से. उसके बाद हमारा क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा, दैट इज़ आई, शी, ही, एक्सेट्रा. उसके बाद क्या लगेगा हमारा? उसके बाद लगेगा नेगेटिव वर्ड नॉट प्लस बी. तो शैल आई नॉट बी डूइंग दिस वर्क टुमारो, विल ही नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो. ओके. सो लेट्स कम टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्म क्या होता है? शैल और विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वी शैल हैव रीच देयर. तो वी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में. शैल ऑक्सिलरी वर्ब है. हैव लगेगा क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है. और रीच्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रीच. तो ये वर्ब लग गया यहाँ पर, ठीक है. अनदर एग्जाम्पल, ही विल हैव डन दिस वर्क. अंडरस्टूड? सो टू फॉर्म एनी सेंटेंस in any negative sentence in future perfect tense, so कैसे लगेगा? तो it will start with subject, ठीक है. सब्जेक्ट के बाद हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स लगेंगे, शैल और विल. देन क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम नॉट लगाएंगे, प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ओके. फॉर एग्जाम्पल, वी शैल नॉट have reached there. So in this sentence, we is the subject, shall is the auxiliary verb, not is the negative word, plus have plus reached is the past participle. Okay. Another example, he will not have done this work. Similarly for interrogative sentence हमेशा हम shall और will के start करेंगे. Okay. Followed by the subject. For example, shall we have done this work? Okay. So for negative interrogative sentences, they are formed by putting shall or will before the subject and not after the subject. For example, shall we not have reached there? So shall is the auxiliary verb, we is the subject, not is the negative word, plus have plus past participle. Okay. Easy. Understood? Now what are the uses of future perfect tense?